Hello students, in this next section of C language we are going to learn about constant. So what is constant? So constants is the entity of C that do not change its value throughout the execution of program. मतलब कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. C constants can be divided into different categories as shown in this figure. So we can see here in figure constant are divided into main four categories: numeric constant, symbolic constant, backslash constant and character constants. We can see numeric constant again categorized into two parts, integer and real, and same way character constants are divided into two parts, single character and string, right? So first of all, integer. So in integer constant, whole numbers are included like 1, 2, 250, minus 90 and all. And in real constant, decimal numbers with fractional part. For example, 25.99 minus 9.558. These numbers are included. The next is symbolic constant. The numeric constant represented by name. We are using any name for define any constant, then it is symbolic constant. And backslash constant, special two character constant like slash a slash b that we are using here backslash, that's why it is called backslash constant. Single character, that means only a single character, a b h and string. We all know that combination of character is known as string. So here if you are writing any set of characters that is enclosed by double quotes, then it is called string constant. This all constant we are going to learn in detail. The first one is numeric constant. So as name suggests, the constant that store numeric value is known as numeric constant. Numeric constant, as we seen earlier, are categorized into two parts, integer constant and real constant. So first of all, we are going to learn integer constant in detail. So in integer constants, whole numbers are included, as we all know that, but it again categorized in three parts: decimal, hexadecimal, octal, right? So in decimal constant use numeric digits from 0 to 9. मतलब कि डेसिमल कांस्टेंट में हम कौन से डिजिट यूज करेंगे? 0 to 9. एंड वी कैन यूज प्रीफिक्स यूनरी प्लस और माइनस. मतलब कि आप डेसिमल कांस्टेंट में आपके नंबर्स के आगे माइनस या प्लस एज अ प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल कांस्टेंट. सो इन हेक्साडेसिमल कांस्टेंट numeric digits are used, that is 0 to 9, and also letters is used, that is A to F. मतलब कि आप 0 to 9 digit यूज कर सकते हो and A to F alphabetical A to F आप यूज कर सकते हो. Here A to F refers to numeric value 10 to 15 respectively. मतलब आपका जो A है उसकी numeric value क्या होगी? 10, ऐसे B की 11, ऐसे F की 15, right? The hexadecimal numbers have base 16. We all know that. जैसे बाइनरी का 2 बेस होता है, वैसे हेक्साडेसिमल नंबर्स का बेस क्या होता है? 16. When using this value in C, we differentiate it from decimal number by using 0x or 0 big X as a prefix. मतलब कि जब भी आप हेक्साडेसिमल कांस्टेंट डिफाइन करोगे तो आप एज अ प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? हम 0x, right? And the last one is the octal constant. तो वो कौन से डिजिट यूज करेंगे? 0 to 7. फाइन. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स एट 7. सो टोटल 8. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड octal constant. And we all know that the base of this number system is 8. When using this value in C, we differentiate it from decimal number by using prefix 0. ये याद रखना कि जब हेक्साडेसिमल कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो हम प्रीफिक्स में 0x और 0 big X यूज करेंगे, बट इन octal we are using. Here on screen we can see some valid and invalid integer constant. The first one is 14,000. So it is valid because it is whole number. The next is minus 120. Again it is whole number, so it is valid. The next one is 749L. So again it is valid decimal positive. Here L stand for long whole number. The next one is 0xb5. That means 0x as a prefix है तो क्या होगा? हेक्साडेसिमल number. So again it is valid.
The next one is 0 big X79. 0 big X is also prefix of hexadecimal number. So again this number is valid. The next one is 045. So 0 किसका prefix है? Octal number का. So here it is valid octal number. The next one is 25,000, but 25 के बाद क्या है? Comma. So in constant comma is not allowed. That's why it is invalid. The next one is minus 100.0. 0.0 है, that means fractional part. तो integer numbers में fractional parts नहीं होते, so that's why it is invalid integer constant. Real constant है वो, but integer क्या होगा? Next is RS749, right? So RS alphabets are given to you and alphabets are not allowed. That's why it is invalid. The next one is 0xg, right? 0x is the prefix for hexadecimal numbers and g is given to you. G is the not part of hexadecimal numbers because hexadecimal numbers contain only character A to F. That's why this is invalid. Next is 0x8, 9. So here comma is given to you between 8 and 9 and comma is not allowed. That's why it is invalid. Next is 096, right? 0 is the prefix but 9 is given to you. 0 is the prefix for octal numbers, right? And this is octal number, but 9 is given to you. And in octal numbers only digits 0 to 7 is allowed. That's why it is invalid. The next is real constant, right? So real constants refers to decimal numbers that have fractional part, as we seen earlier. Example of real constant are 10.50, minus 65.75, etc. Real constant can also represented by using scientific form, right? उसको हम scientific form में भी represent कर सकते हैं. In this form, a number is represented using mantissa and exponent that we have seen in grade 9. For example, the value of 25.75 can be represented in scientific form as 0.2575 E2 or 0.2575 capital E2. Here small e and capital E both are same, right? So here 2575 is known as mantissa and 2 is known as exponent, right? Example is given to you 250.00. So it is valid decimal fractional number. The next one is 295, right? It is again valid decimal number because when you process this 295, it is automatically converted to 295.00, right? Next is minus 15.55. It is again valid negative decimal number. The next one is minus 20.5 E5. So it is in scientific form and it is valid. The next one is 15 E minus 2. Again it is in scientific form and it is valid. The next one is 19,800.00. Here comma is given to you. That's why it is invalid. $786. Dollar is special character and special character not allowed. That's why it is invalid. Minus 9.4 E 5.0. It is in scientific form but here your exponent is 5.0 and आपका exponent क्या होना चाहिए? Integer. That's why it is invalid, right? 51A space minus 2. Here blank space is given to you and blank space is not allowed. That's why it is invalid. The next one is character constant, right? So as the name suggests, it contains characters like A, B, C, D. There are two types of character in C: single character constant and string constant. So first one is single character constants. Again, as name suggests, single character constant is represented by using single character, right? जो एक single quotes में अगर कोई आप character represent कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? Single character constant. Example are in single quotation H, V, 7, right? Here each character constant is associated with numeric value known as ASCII, right? सभी ये जो आप कैरेक्टर ले रहे हो उसकी क्या एक वैल्यू होती है? कौन सी वैल्यू? ASCII. The full form of ASCII is American Standard Code for Information Interchange, right?
Next is string constant. String constants are denoted by using sequence of characters enclosed within double quotes. मतलब कि जो भी हम string constant define करेंगे उसको कैसे लिखेंगे in double quotes. Some examples of string constants are C language, by, V, right? String constants don't have any ASCII value. मतलब कि जैसे सिंगल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू रहती है वैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट की कोई ASCII वैल्यू नहीं होती, राइट? यह स्ट्रिंग कांस्टेंट v इज नॉट इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट v. मतलब कि कोई कैरेक्टर को आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो एंड उसको ही सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो तो इस दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता. Here string v will be allocated 2 memory space but character v will be allocated only 1 memory space. मतलब कि डबल कोटेशन में लिखा हुआ वो v 2 मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा जबकि सिंगल कैरेक्टर में लिखा हुआ भी ओनली 1 मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. इसीलिए हम स्ट्रिंग जब भी डिफाइन करते हैं सी में तब उसको किसके साथ एंड करेंगे? बाय नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर मतलब कि /0. The next one is backslash characters. The single character constants, as the name suggests, use single character, while string character uses sequence of characters. C also provide special character constant that use 2 characters. मतलब कि सिंगल कैरेक्टर में क्या होता है? सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होता है. स्ट्रिंग कैरेक्टर में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है. बट सी में ऐसे भी कांस्टेंट है जो ओनली 2 कैरेक्टर यूज करते हैं, राइट? तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम क्या कहेंगे? बैकस्लैश कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंसेस, राइट? और जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज क्या होता है? स्लैश, राइट? While they are known as escape sequences, character as the input of this constant is not character but white spaces. मतलब कि ऐसे constant का output क्या होगा? White space. Similar to single character constants, these constants also have an ASCII value associated with them. तो single character की तरह इसकी भी क्या होगी? ASCII value होगी, right? तो इस टेबल में आपको बैकस्लैश कैरेक्टर्स दिए गए, उसका यूज एंड उसकी ASCII वैल्यू दी गई है. फर्स्ट वन है /0 तो उसका यूज है इंसर्टिंग नल वैल्यू, ASCII वैल्यू है 0. नेक्स्ट इज /a यूज इंसर्टिंग ऑडिबल अलर्ट एंड ASCII वैल्यू 7. नेक्स्ट /b इंसर्टिंग बैकस्पेस एंड ASCII वैल्यू 8. नेक्स्ट /t यूज है उसका इंसर्टिंग हॉरिजॉन्टल टैग एंड उसकी ASCII वैल्यू 9. /n इंसर्टिंग न्यू लाइन एंड उसकी ASCII वैल्यू है 10. /v इंसर्टिंग वर्टिकल टैग, ASCII वैल्यू 11. /f इंसर्टिंग फुल फीड और उसकी ASCII वैल्यू है 12. /r इंसर्टिंग कैरेज रिटर्न एंड उसकी ASCII वैल्यू है 13. डबल इन्वर्ट कोट्स तो इंसर्टिंग डबल कोट्स एंड ASCII वैल्यू है 34. सिंगल कोट्स तो उसका यूज है इंसर्टिंग सिंगल कोट एंड उसकी ASCII वैल्यू है 39. क्वेश्चन मार्क तो फॉर इंसर्टिंग क्वेश्चन मार्क एंड ASCII वैल्यू 63. डबल स्लैश तो इंसर्टिंग बैक स्लैश ASCII वैल्यू है 92. द नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक कांस्टेंट, राइट? Certain numeric and character constants can be defined using symbolic identifier. Such constants are known as symbolic constant. To define a symbolic constant, we use the given syntax, right? हमने पहले ही देखा था कि कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम एक आइडेंटिफायर यूज करते डिफाइन, राइट? तो ऐसे करके आप जो डिफाइन करते हो उसको क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. फॉर एग्जांपल हैशटैग डिफाइन पाई 3.14, राइट? तो यहाँ पे जो हैशटैग डिफाइन है उसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट? आइडेंटिफायर इज सिंबॉलिक नेम, मतलब जो भी हम नेम दे रहे हैं ऑफ द कांस्टेंट, राइट, जिसको हमें डिफाइन करना है. हियर एग्जांपल इज गिवन टू यू. हैशटैग डिफाइन पाई 3.14 तो हमारा डिफाइन क्या होगा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. PI हमारा आइडेंटिफायर है, उसकी वैल्यू होगी 3.14. नेक्स्ट इज हैशटैग डिफाइन मैक्स वैल्यू 100 तो हमारा आइडेंटिफायर है योर मैक्स वैल्यू एंड उसकी वैल्यू है 100. हियर डिफाइन F फ्लोट तो F आपका आइडेंटिफायर एंड फ्लोट उसकी वैल्यू, राइट? द फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, पाई की वैल्यू हमने 3.14 डिफाइन की. बट लास्ट स्टेटमेंट, राइट, जिसमें हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होगा? F.
एंड वो किसको रिफर करेगा, जो कीवर्ड है फ्लोट, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कीवर्ड फ्लोट, उसको क्या करेगा, रेफर करेगा। द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सी, मतलब कि आपको याद रखने पॉइंट्स ऑफ सी, राइट। द फर्स्ट वन इज हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड बिफोर द मेन फंक्शन, मतलब कि जो भी आप हेडर फाइल ऐड करते हो, जो हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h, उसको आपको कहाँ पे लिखना है, बिफोर द मेन फंक्शन। द नेक्स्ट इज एन एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम ऑलवेज कंटेन अ मेन फंक्शन, मतलब कि आप जो प्रोग्राम लिखते हो उसमें मेन फंक्शन कंपलसरी है, क्योंकि मेन से ही हमारा एग्जीक्यूशन होता है। द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आफ्टर मेन, मतलब कि मेन फंक्शन के बाद जो आप पहला कर्ली ब्रैकेट लिखोगे वहां से आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट इज टू फंक्शन विद द सेम नेम आर नॉट अलाउड इन सी प्रोग्राम, मतलब कि जो हम डिफाइन करते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसको आप सेम नेम नहीं दे सकते। नॉर्मली सी प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ लोअर लेटर अल्फाबेट्स, राइट, एंड आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, मतलब कि जो भी हम यूज करेंगे नॉर्मली कौन से लेटर यूज करेंगे, उसमें लोअर लेटर, बट आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। There should be at least one blank space between two words of a C program. जब C प्रोग्राम लिखोगे तो दो वर्ड के बीच में आपको एटलीस्ट वन ब्लैंक स्पेस छोड़नी है। यूजुअली सी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, मतलब कि ज़्यादातर स्टेटमेंट जो है सी के किसके द्वारा टर्मिनेट होंगे, सेमीकोलन। कॉमेंट्स कैन बी इंसर्टेड वेर एवर अ ब्लैंक स्पेस कैन बी इंसर्टेड, जहाँ पे भी आप स्पेस ब्लैंक स्पेस ऐड कर रहे हो वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, कमेंट्स। एवरी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट शुड हैव करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, मतलब कि अगर आपने कोई कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है तो उसको कंपलसरी है क्लोज करना। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर डिनोटेड बाय यूजिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, मतलब कि जो भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करेंगे उसको कैसे लिखेंगे, इन डबल कोट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर सी लैंग्वेज, बाय, वी, राइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स डोंट हैव एनी ASCII वैल्यू, मतलब कि जैसे सिंगल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू रहती है वैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट की कोई ASCII वैल्यू नहीं होती, राइट। यह स्ट्रिंग कांस्टेंट v इज नॉट इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट v, मतलब कि कोई एक कैरेक्टर को आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो एंड उसको ही सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो तो इस दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता। Here string v will be allocated 2 memory space, by character v will be allocated only 1 memory space, मतलब कि डबल कोटेशन में लिखा हुआ वो v 2 मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जबकि सिंगल कैरेक्टर में लिखा हुआ v ओनली 1 मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए हम स्ट्रिंग जब भी डिफाइन करते हैं सी में तब उसको किसके साथ एंड करेंगे, बाय नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर मतलब कि /0। The next one is backslash characters. The single character constants, as the name suggests, use single character, while string character uses sequence of characters. C also provide special character constant that use two characters, मतलब कि सिंगल कैरेक्टर में क्या होता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, बट सी में ऐसे भी कांस्टेंट है जो ओनली 2 कैरेक्टर यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम क्या कहेंगे, बैकस्लैश कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंसेस, राइट। और जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, स्लैश, राइट। While they are known as escape sequences, character as the input of this constant is not character but white spaces, मतलब कि ऐसे constant का output क्या होगा, white space. Similar to single character constants, these constants also have an ASCII value associated with them. तो single character की तरह इसकी भी क्या होगी, ASCII value होगी, right? तो इस टेबल में आपको बैकस्लैश कैरेक्टर्स दिए गए, उसका यूज एंड उसकी ASCII वैल्यू दी गई है। फर्स्ट वन है /0, तो उसका यूज है इंसर्टिंग नल वैल्यू, ASCII वैल्यू है 0। नेक्स्ट इज /a, यूज इंसर्टिंग ऑडिबल अलर्ट एंड ASCII वैल्यू 7। नेक्स्ट /b, इंसर्टिंग बैकस्पेस एंड ASCII वैल्यू 8। नेक्स्ट /t, यूज है उसका इंसर्टिंग हॉरिजॉन्टल टैग एंड उसकी ASCII वैल्यू 9।
/n इंसर्टिंग न्यू लाइन एंड उसकी आज की वैल्यू है 10, /v इंसर्टिंग वर्टिकल टेप आज की वैल्यू 11, /f इंसर्टिंग फूड फीड और उसकी आज की वैल्यू है 12, /r इंसर्टिंग कैरेज रिटर्न एंड उसकी आज की वैल्यू है 13, डबल इन्वर्ट कोट्स तो इंसर्टिंग डबल कोट्स एंड आज की वैल्यू है 34, सिंगल कोट्स तो उसका यूज है इंसर्टिंग सिंगल कोट एंड उसकी आज की वैल्यू है 39, क्वेश्चन मार्क तो फॉर इंसर्टिंग क्वेश्चन मार्क एंड आज की वैल्यू 63, डबल स्लैश तो इंसर्टिंग बैक स्लैश आज की वैल्यू है 92. द नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक कांस्टेंट, राइट? Certain numeric and character constants can be defined using symbolic identifier. Such constants are known as symbolic constant. To define a symbolic constant, we use the given syntax, right? हमने पहले ही देखा था कि कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम एक आइडेंटिफायर यूज करते डिफाइन, राइट? तो ऐसे करके आप जो डिफाइन करते हो उसको क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. फॉर एग्जांपल, हैशटैग डिफाइन पाई 3.14, राइट? तो यहाँ पे जो हैशटैग डिफाइन है उसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट? आइडेंटिफायर इज सिंबॉलिक नेम, मतलब जो भी हम नेम दे रहे हैं ऑफ द कांस्टेंट, राइट, जिसको हमें डिफाइन करना है. हियर एग्जांपल इज गिवन टू यू, हैशटैग डिफाइन पाई 3.14. तो हमारा डिफाइन क्या होगा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. पीआई हमारा आइडेंटिफायर है, उसकी वैल्यू होगी 3.14. नेक्स्ट इज हैशटैग डिफाइन मैक्स वैल्यू 100. तो हमारा आइडेंटिफायर है योर मैक्स वैल्यू एंड उसकी वैल्यू है 100. हियर डिफाइन एफ फ्लोट, तो एफ आपका आइडेंटिफायर एंड फ्लोट उसकी वैल्यू, राइट? द फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, पाई की वैल्यू हमने 3.14 डिफाइन की, बट लास्ट स्टेटमेंट, राइट, जिसमें हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होगा? एफ, एंड वो किसको रिफर करेगा? जो कीवर्ड है फ्लोट, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कीवर्ड फ्लोट, उसको क्या करेगा? रेफर करेगा. द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सी, मतलब कि आपको याद रखने पॉइंट्स ऑफ सी, राइट? द फर्स्ट वन इज हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड बिफोर द मेन फंक्शन, मतलब कि जो भी आप हेडर फाइल ऐड करते हो, जो हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h, उसको आपको कहाँ पे लिखना है? बिफोर द मेन फंक्शन. द नेक्स्ट इज एन एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम ऑलवेज कंटेन अ मेन फंक्शन, मतलब कि आप जो प्रोग्राम लिखते हो उसमें मेन फंक्शन कंपल्सरी है, क्योंकि मेन से ही हमारा एग्जीक्यूशन होता है. द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आफ्टर मेन, मतलब कि मेन फंक्शन के बाद जो आप पहला कर्ली ब्रैकेट लिखोगे वहां से आपका क्या होगा? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. द नेक्स्ट इज टू फंक्शन विद द सेम नेम आर नॉट अलाउड इन सी प्रोग्राम, मतलब कि जो हम डिफाइन करते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसको आप सेम नेम नहीं दे सकते. नॉर्मली सी प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ लोअर लेटर अल्फाबेट्स, राइट, एंड आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, मतलब कि जो भी हम यूज करेंगे नॉर्मली कौन से लेटर यूज करेंगे? उसमें लोअर लेटर, बट आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं. देयर शुड बी एटलीस्ट वन ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ अ सी प्रोग्राम. जब सी प्रोग्राम लिखोगे तो दो वर्ड के बीच में आपको एटलीस्ट वन ब्लैंक स्पेस छोड़नी है. यूजुअली सी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, मतलब कि ज्यादातर स्टेटमेंट जो है सी के किसके द्वारा टर्मिनेट होंगे? सेमीकोलन. कमेंट्स कैन बी इंसर्टेड वेरेवर अ ब्लैंक स्पेस कैन बी इंसर्टेड, जहाँ पे भी आप ब्लैंक स्पेस ऐड कर रहे हो वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? कमेंट्स. एवरी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट शुड हैव करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, मतलब कि अगर आपने कोई कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है तो उसको कंपल्सरी है क्लोज. द नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम, मतलब कि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है. तो एज सोन इन फिगर, फर्स्ट वन इज यूजर टाइप्स प्रोग्राम, मतलब कि हम प्रोग्राम टाइप करते हैं बाय यूजिंग एनी एडिटर लाइक साइट, और वी कैन ऑल्सो यूज टर्बो सी. इन दिस चैप्टर वी आर यूजिंग साइट एडिटर. देन दिस टाइप्ड program is known as source code or source program, right? But we all know that कंप्यूटर ये नहीं समझ सकता, दैट्स वाई इट इज ट्रांसलेटेड बाय एनी ट्रांसलेटर, राइट? और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज कंपाइल्ड.
तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे, जीसीसी कंपाइलर. दिस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम नाउ नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, राइट. एंड ये ऑब्जेक्ट कोड इन लाइब्रेरी फाइल्स का लिंकिंग होता है बाय यूजिंग द प्रोग्राम लिंकर. तब फिर वो क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल कोड, राइट. एंड देन दिस एग्जीक्यूटेबल कोड is loaded by loader or appropriate data is inserted, then we get our final output. So this way C program executes. The next one is history of C, right. Till now we have learned so many topics of C. Let's learn about history of C, right. The origin of C has been dated back to 1917 in Bell Laboratories. मतलब कि C कहाँ पे इन्वेंट हुई थी, बेल लेबोरेटरीज में. और द मैन who owns the credit of creating C language is डेनिस एम रीचे. और किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, डेनिस एम रीचे के द्वारा, राइट. इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली नोन एज BCPL. उसको कहाँ से डिराइव किया गया था, कौन सी लैंग्वेज में से, BCPL में से. पहले तो C प्रोग्राम का यूज और उसका एम क्या था, टू बिल्ड रोबस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर. मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. रोबस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मतलब कि अगर उसमें कुछ एरर जनरेट होती है तो वो ये सिस्टम खुद हैंडल कर लेता है. But it becomes a pet of programmers in coming years and has been used for developing all kinds of software. फिर क्या हुआ कि सभी प्रोग्रामर्स C का यूज़ करने लगे और अब उसका यूज़ क्या होता है, all kinds of software बनाने के लिए. Hence it is known as general purpose programming language, right. Although born in 1972, it was standardized in 1989 by American National Standard Institute. तो C कब इन्वेंट की हुई थी, 1972 में, बट उसका स्टैंडर्डाइज्ड कब हुआ, इन 1989 बाय ANSI. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ANSI C, राइट. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर सपोर्ट दिस स्टैंडर्ड. मतलब कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम C रन करवा सकते हैं. सो इन दिस सेशन वी हैव लर्न about constants, categories of constants, steps of executing C programs, and then history of C and some important points of C. Thanks for watching.